اور امجد بھائی کے لیے کسی نے جو ہے وہ یوسف حسین کاتب صاحب نے ایک شعر لکھا، کیا سمجھتے ہیں مجھے مار کے جانے والے، کیا سمجھتے ہیں مجھے مار کے جانے والے، بعد مرنے کے زمانے سے چلا جاؤں گا، جب بھی دنیا میں پڑے گا کوئی بھر دو جھولی، یاد بن کے میں خیالوں میں چلا آؤں گا۔ تو یہ کلام ان کا امر ہو گیا اور رہتی دنیا تک بچے بچے کی زبان پر رہے گا۔ میری گزارش ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں تاکہ ہم امجد بھائی کو بھی پیش کریں اور آپ سب کے بھی مرحومین کو انشاءاللہ ثواب پیش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا، یہاں جتنے بھی ہیں جمع تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں، وطن کے بھڑکتے شرارے
بجھا دے اسے اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اے مالک مولا پروردگار عالم یہ کلام کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں پڑھنے والے امجد صابری کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے ہم نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی الہ العالمین تو ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما دے جو کچھ ثواب تو ہمیں عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ قبول پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام امہات المؤمنین خلفاء الراشدین صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اہل بیت اطہار تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ امجد صابری ان کی پوری فیملی میں جو دنیا سے چلے گئے ان کے والد مرحوم ان کے چچا اور تمام فیملی کو جو دنیا سے چلے گا مولا بالخصوص شہید امجد صابری کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما نور کی چادر پر عطا فرما الہ العالمین کروٹ کروٹ امجد صابری کو الہ العالمین جنت عطا فرما جنتی بچھونا عطا فرما جنتی لباس عطا فرما ہم سب جو یہاں دعا میں شامل ہیں اسکرین کے سامنے بیٹھ کر یہاں جتنے حاضرین ہیں الہ العالمین جن جن کے جو عزیز اقربا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے میرے والدین کے لیے دعا فرما اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے سب کے درجات بلند فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ہمارے بھائی عارفین بھائی کے درجات بلند فرما ہمارے راحیل کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہمارے آپا مایا آپی کے والد مرحوم کے لیے دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحاج مرحوم خورشید احمد کے درجات بلند فرما سب کی بے حساب مغفرت فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے عشرہ مغفرت جاری ہے الہ العالمین عشرہ مغفرت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا ہماری مغفرت فرما دے ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے مولا بے حساب بخشش و مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مولا جن کے روزے تو قبول کر رہا ہے ان کے روزوں کا صدقہ مولا ہمارے بھی روزوں کو قبول فرما لے جن کی نماز تراویح تو قبول فرما رہا ہے مولا ان کا صدقہ ہماری بھی نمازوں کو قبول فرما ذکر و اذکار کو قبول فرما رب کریم ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ جو بے روزگار ہے اسے اچھا روزگار عطا کر دے جو بے اولاد ہے اسے اولاد صالحہ عطا کر دے جو بے گھر ہے مولا اسے گھر عطا فرما دے سب کو خوشیاں عطا فرما ہماری 24 HD نیوز کی پوری ٹیم کو مولا دارین کی برکت عطا فرما ترقی عطا فرما برکت عطا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی مولا ہم سب کا ظاہر و باطن اچھا کر دے ہمیں نیک بنا دے عاشق رسول بنا دے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا بن مانگے عطا کر دے سب پر کرم فرما عالم اسلام کی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا آمین جب وقت نزا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں
اندھیری میں گھبرا تنہا میں قبر اندھیری میں گھبرا تنہا امداد میری کرے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو مجرم ہوں زمانے کا محشر میں قرار رکھنا رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں زمانے کا محشر پر رکھنا رسوائی زمانہ ہو کمرے میں چھپا لینا ہے پردہ نشین دل کے اور چہرے سے ضیاء پائی اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA ہم عوام ہیں یا رعایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں
अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जरूरत है।
जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ कर दिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदन अल-वसीलता वल फ़दीलता वद दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ऐ अल्लाह, ऐ इस दावत कामिल और इसके नतीजे में खड़ी होने वाली नमाज के रब, तू हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा
اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اس وقت تک ہم پچھلے سال واپس آ چکے تھے، سیٹ پر آ گئے تھے واپس۔ امجد بھائی کی آج پہلی برسی، جتنا ہماری اوقات، جتنا ہماری قوت تھی، جتنا ہمارے اندر طاقت تھی، ہمارے ساتھ اس وقت سب اپنے موجود ہیں، لیکن جس اپنے کے لیے موجود ہیں وہ شہادت کا درجہ پا کر کسی اور اونچے مقام پر چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر میراحیل، شیف مدیحہ، عظما، جویریہ، تابندہ آپا، سالوں کا ساتھ۔ نیاز ہو تو ان کے گھر جائیں، لنگر ہو تو امجد صابری کو دیکھے کوئی بانٹتے ہوئے لنگر۔ وہی والی بات کہ وہ شارٹس پہن کر، شرٹ پہن کر لگے ہوئے ساری رات حلیم بن رہی ہے۔ آج بہت یاد آئے، بہت زیادہ۔ آج یقین نہیں ہوتا، ہم کل بھی رات کو یہ اور میں ہم گئے ہوئے تھے کچھ لینے کے لیے، راستے میں تھے، تو ہم ایک دوسرے سے یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں 1 سال گزر گیا اور وقت کا پتہ نہیں چلا، اور اب تک وہ بات کا نہیں معلوم چلا کہ امجد بھائی کالڈ عزیر مائی ہسبینڈ، اور انہوں نے رات کو کہتے ہیں 1 رات پہلے کہ مائع سے کہنا میں کل اس کو سرپرائز دے رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امجد بھائی مجھے تو بتاؤ کیا سرپرائز دے رہے ہو آپ؟ کہہ رہے میں اس کو بتانا نہیں کہ میں اس کو سرپرائز دے رہا ہوں، اور میں کتنی بار یہ بات کو دہرا چکی ہوں کہ یہ سرپرائز دیا مجھے کہ دیکھ تیرا بھائی شہید ہوا ہے۔ وہ بچی آج ہمارے ساتھ موجود ہے، تو پچھلے سال پورا مہینہ کچن میں رہی۔ اس کی طرف مائک لے جائیے جس کو پتا ہے میں کیا بات کر رہی ہوں، پلیز کو مائک دے دیجیے گا۔ اور دسترخوان پر روز ایک آواز آتی اس کے نام کی، اور اس سے کیا کہتے، اور جب کبھی فریج گرمی کی وجہ سے خراب ہوتا تو کیا کہتے، اور جس دن ان کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کے اب تک وہ بھی شاید اسی صدمے میں ہے اور درد سے اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سلا آ جاؤ، مائک لے کر آ جاؤ، اس ماں کو بھی مائک دے۔ دسترخوان پہ سے آواز آتی، سلا ٹھنڈا نہیں شربت میرا، فریج کا ایسا وہ، ادھر آرام سے رکھو، آرام سے رکھو، آ جاؤ گڑیا، کچھ کھایا تم نے، افطار کیا، آ جاؤ پلیز بیٹھو نا، اچھا تھوڑا سا آگے، ہاں آ جاؤ بسم اللہ۔ اس بچے نے مجھ سے بہت ڈانٹے کھائی، بیٹھو۔ وعلیکم السلام۔ یاد آ رہا ہے امجد بھائی بہت؟ کیا یاد آ رہا ہے ان کا؟ میرے پاس ورڈز نہیں ہے نا۔ سارا تمہارے ساتھ کچن میں آ کے روز بنواتے تھے نا؟ بتاؤ سب کو کہ کتنے بجے آتے تھے، کیسے بناتے تھے، کیا چاہیے ہوتا تھا ان کو؟ ان کے لیے ایک خاص شربت بناتی تھی میں روز، ٹھنڈا ان کو چاہیے ہوتا تھا، نیمبو ڈال کے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا تو وہ ڈانٹتے تھے مجھے، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ کیسے ڈانٹتے؟ ابھی مجھ سے مل کے بہت روئی ہے، بہت مل رہی ہے، کیونکہ روز دسترخوان پہ ایک آواز آتی تھی، سلا۔ ارے شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کس کو بلا رہے ہیں، یہ کیسا نام ہوا سلا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ میں نے کس کا سلا، کون سا سلا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ کچن سے جو ٹھنڈا پانی بھیجتی مجھے، اور جب فریج خراب ہوا اس دن کیا کیا انہوں نے؟ اس دن بھی ڈانٹا تھا انہوں نے مجھے، تم نے پہلے سے نہیں بنا کر رکھا، تمہیں پتا میں ٹھنڈا شربت پیتا ہوں روز ٹھنڈا نا۔ عظما جان مجھے پتا ہے بہت، ہم نے شروع میں یہی حالت ہو گئی میری، جو سب تمہاری کیفیت ہے، میں 2 دن سے تمہیں یاد کر رہی ہوں، 2 دن سے۔ کتنی دفعہ ماشاءاللہ ان کے گھر ملاقات ہو، بریانی کس میں، پلیٹوں میں تو آتی نہیں، کس میں، ڈشوں میں آتی ہیں، ڈشوں میں، تھال میں۔ بتاؤ
कैसे रौनक होती थी घर के, खुद खड़े होकर सबको खिला रहे होते थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो फैमिली है उनको बहुत सब्र दे। हम इस ट्रांसमिशन को आगे लेके तो जाएंगे, काम चलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, सबके टूर्स होते रहेंगे। बस ज़िंदगी की यही बात है कि मेरा भाई हंसना, खेलना, खुश रखना जानता था और चाहता था। तो आइए उन्हीं की चाहत को हम बरकरार रखते हैं इन मोहब्बतों के साथ कि मैं स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अगर इनायत हो। lootlo.pk गो लूटलो एंड GFS 7 वंडर्स का बहुत शुक्रिया। रोज़ा खुशाई के बच्चों को बहुत उनका पहला रोज़ा मुबारक हो। वो KFC इस वक्त ठूसने में इंतहाई मसरूफ़ और कहीं कोई चिकन का कॉर्नर बाहर ना रह जाए, उस पर सबसे ज़्यादा जोर है। माया आपी और माया फुप्पो और माया खाला गई तेल लेने, हमें अभी अपना KFC बर्गर ठूसने दो, तो ठूसो। और हाँ, यहाँ पे ये समन साहब लगी नहीं है जो मुझसे इंतहाई इश्क करती है, माया पुप्पो और माया पुप्पो भी जाए तेल लेने, मैं कुक्कड़ में घुसी हुई हूँ तो मैंने पूछा ही नहीं। रोज़ा खुशाई के बच्चों के साथ जाएंगे कशी जाम मिश्री की तरफ से, हिमानी की तरफ से, अजवा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर द चॉकलेट्स। कशी जाम मिश्री का बहुत शुक्रिया। 100% खालिद सर के हाथ से तैयार किया जाता है। रोज पेडल पॉइंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा टिश्यू ब्रांड जो कि अपने कंज्यूमर के लिए नित नए टिश्यू प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराता रहता है। एसरुल कलाम का बहुत शुक्रिया। मीज़ान ऑयल 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुपर माइक्स देने का आवाम को वादा किया है। और नेस्ले का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे। आप लोगों के साथ हमारे जाएंगे इनामात। कैनन एक्सीलेंट, लासानी, BGCW, डीन लाइफस्टाइल, हिमानी हर्बल, करशी, आईवी फैब्रिक्स और जेस्को के और अजवा की तरफ से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। और हम जाएंगे इसे जरा क्लोजअप ले ले कोई कुकर ठूसते हुए। और उनका ये जो सामने बैठी है ना, पहला रोजा है उनका, देखो उनकी तैयारी देख लो, जो काले स्कार्फ में, ये तो मैंने अब देखा। सुनो, पलट, ये बैठी हुई सामने, इधर पलटो। वाह 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 वाह, मुझे क्यों लग रहा है मैं किसी टर्किश ड्रामे में आ गई हूँ अचानक। इसको माइक तो दे दो कोई। बिल्ली उधर देखो, उधर ये शाबाश, सामने देखना बिल्कुल। अगले 5 मिनट तक कैमरा। ऐसे तो हम घबरा जाते हैं, आप ही ऐसे ही कैमरा में देखते है ना। घबराई न जाओ। इससे बेटा इसका नाम तो पूछो जरा। हसन चाचू जरा नाम तो पूछ ले बच्ची का। है पूरम सुल्तान है। इकरा आपका पहला रोजा था है। अच्छा कैमरे की तरफ देखें, उधर। हाँ, ये मुंह उधर रखना है और बॉडी मेरी तरफ रखनी है। अगले 2 मिनट देखो, आप उनके साथ आई है ना, हंसी जा रही है बच्ची की मासूम से। किसके साथ आई है ये? हैं? बच्ची बिल्कुल पॉज हो गई। तुमने आराम से खा लिया गुड़िया? हैं? अभी और खाना है ना? भूख नहीं लग रही? क्या खाया था सहरी में? सहरी में क्या खाया था? चाय पराठा। चाय पराठा? चाय पराठा तुम्हें किसने दिया? मम्मा ने चाय पराठा किया। पहला बच्चा आया जिसने अंडा पराठा नहीं बोला। शुक्र है अल्लाह का, अंडे को आज बख्श दिया गया इस गर्मी में, उससे एक दिन चूजा निकलेगा। लेकिन दैट इज फैमिली प्लानिंग, आई गेस आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट हाँ, तुमने जो चाय पराठा खाया इतनी गर्मी में, तुम्हें प्यास नहीं लगी? प्यास लगी ना मेरा बच्चा? पानी है ना आपके पास? वेरी गुड, पानी पियो। और ये बताओ कि रोजा लगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा लगा। पक्का वाला पहला रोजा था या कच्चा वाला पहला रोजा था? पक्का वाला। कोई चीटिंग नहीं की? रोजा, देखो एक सवाल है, रोजा रखा कहाँ था तुमने, बताओ? जहाँ पे आपने रखा था। मैंने हसन चाचू, रेहान चाचू को जवाब दिए ये कि जहाँ आपने रखा था। तो सुन लीजिए। नहीं, लेकिन आपने तो अपने घर में रखा था। मैंने तो अपने घर में रखा, तुमने कहाँ रखा था? देखो आज मैंने यहाँ पे रखा था। आज यहाँ रख दिया। वेरी गुड भाई, इनकी अमानत है, वापस कर देना इनको। ये ना हो ये चली जाए, इनका रोजा रह जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा। हमारी हुरम सुल्तान के साथ आप तशरीफ रखिए मोहतरमा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गुड़िया। तैयारी तो देखो इसकी, लड्डू जैसी। ये बच्ची इधर क्यों बिठा दिया? ये बच्ची हमने इधर बिठाई है। ये पिंक वाली। ये पिंक वाली। देखिए क्या जाता है कि सबसे प्यार करो, कफे के बाद आइए। का मैच है एरियल वर्सेस नामो।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंचता। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। तुम साथ थे हम सबके अभी कल की बात है, सब रहते थे संभल के अभी कल की बात है। माया से छेड़खानी फरहान से याराना, आती है याद तेरी वो हरकतें बचकाना। रेहान के कांधे पर वो प्यार भरी थपकी, हस्सान को हिलाना जब आए उसे झपकी। तुमने जवेरिया को बच्चों की तरह रखा, अफ्तार में हर डिश को था तुमने पहले चखा। हर एक को तुमने अपने जैसा बना लिया था, दिल दे के सबको अपना उनका चुरा लिया था। छूटे से ना छूटे वो आदत सी बन गए थे, सबको भली लगे वो शरारत सी बन गए थे। उस दिन सभी की आंखें दहलीज पर टिकी थीं, हर शख्स मुंतजिर था, सांसें रुकी रुकी थीं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सब एक दूसरे से नजरें चुरा चुरा कर करते रहे दुआएं, रो रो के गिड़गिड़ा कर। मैं कुछ भी नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो सुन रहे हैं यार अब ऐसा कभी न करना, झेलेंगे किस तरह से हम भाई का ये सदमा। रद्द करके सब दुआएं रब ने हमें बताया,
क्यों रो रहे हो पगलों, मैंने उसे बुलाया। जो सबका प्यारा हो वो मुझे कितना प्यारा होगा, तुम्हें क्या खबर कि उसने कितना पुकारा होगा। वही लगाते हैं, ताजदार है रंग लगाइएगा आखिर में। जज़ाकल्लाह। एक बार फिर आप सब लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग आज आए उन लोगों का हमारी पूरी फैमिली की जानिब से हाँ, मैं कहती हूँ कि आप लोगों की आज शायद शिरकत होनी थी कि आप लोग आज फातिहा में हमारे साथ रहे, और जो लोग घरों से थे उनका भी बहुत शुक्रिया कि अगर उन लोगों ने, मेरे घर में भी सब लोग साथ साथ इस ट्रांसमिशन में इसलिए नहीं थे कि हम लोग उस फैमिली की तरह हैं, बल्कि इसलिए कि आज का दिन हम सबको इकट्ठे रहकर गुजारना था। और अल्लाह पाक ने देखे शुरुआत में ही फरहान आ गए और हम सब लोग इकट्ठे हो गए। आज सब लोग उनसे मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में आज का दिन उनकी याद में मना रहे हैं। हम सब की जानिब से पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बत। आप एक मैं बात कहना चाहूँगा कि अमजद भाई की ख्वाहिश थी, मुझे रात को एक ट्रांसमिशन में हम थे उनकी फैमिली के साथ, तो अम्मा ने एक बात बोली कि अमजद भाई ने भाभी से कहा कि मेरी बरसी नहीं करना कभी, मेरी बरसी नहीं करना, मेरा उर्स करना। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो उनकी ख्वाहिश थी, वो अपने वालिद का उर्स मनाते थे, बरसी नहीं करते। उर्स ठीक है, उर्स को जो हम जो उलमा कराम कहते हैं, हम शादी की तरह खुशी भी कहते हैं उसको एक मतलब, तो इसलिए उर्स कहते हैं। उर्स का मतलब जैसे शब उरूसी कहलाते हैं, दुल्हा दुल्हन की पहली रात। तो उसमें ये होता है कि जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो कब्र में उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाता है। तो वो इसके लिए शादी का दिन होता है एक मोमिन के लिए। तो यानी जिस दिन मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई है वो मेरा उर्स का दिन होगा। आज अमजद भाई का उर्स का दिन है और इंशाल्लाह अभी हम भी वहाँ जाएंगे और अल्लाह पाक उनकी फैमिली को भी हौसला दे, हिम्मत दे, सब्र दे, और मुजद्दिद और उनके तमाम बच्चों को और उनको मुहिब को कि वो अपने वालिद का नाम लेकर चल सकें। अगर मैं कहूँगी सुहेल आप भी चंदा अगर 2 सेकंड के लिए आ सकें, आखिरी फ्रेम है, कोई भी संभाल लेगा। सुहेल मेरा भाई तो है ही, हम सबका भाई तो है ही, मतलब हमारा तो रिश्ता नहीं बताने का टाइम, लेकिन अमजद भाई से सुहेल का जो रिश्ता, सुहेल जैदी के पास कौन सी ऐसी वीडियो है, कौन सी ऐसी, जी आ जाओ ना, आ जाए सुहेल भाई, आ जाए, थोड़ी 1 मिनट आ जाओ ना शेरी प्लीज मेरा भाई। अमजद साबरी के लिए आ जाए, अमजद साबरी के लिए। ऐसी ऐसी ऑडियोज हैं सुहेल के पास, ऐसी ऐसी वीडियोस हैं सुहेल के पास कि जब ये हादसा हुआ था, सुहेल कंट्रोल रूम में जिस तरीके से उस इंसान ने हिम्मत के साथ वो ब्रेक लिया है ना, कोई सोच भी नहीं सकता उस कैफियत में कि कोई इंसान अपने हवास काबू में रख भी सकता है। सिर्फ कहूँगी मेरा भाई प्लीज आ जा, हिम्मत करके एक मोहब्बत भरी जो भी जुमला कहना हो भाई के लिए कह दो, क्योंकि यू डिजर्व टू बी हियर टुडे। जहाँ जैसे भाइयों ने कहा कि हम आज अपने भाई का हमने उर्स मनाया, आ जाओ मेरा भाई। जो भी एक जुमला भाई के लिए। बस अमजद भाई को बस यही बोल सकता हूँ कि अमजद भाई आई रियली मिस यू। आपके बगैर रमजान जो है ना वो बहुत अधूरा हो गया। और जुमला हम कह रहे थे अभी कि रूहानियत नहीं आ रही, रूहानियत एक फील आती थी रमज़ान की कि अमजद भाई की एक फ्लोर पर आने में एक गहमा गहमी सी हो जाती थी, एक शख्स जो सारे शहर को वीरान कर गया। तो आते थे, इकट्ठे जाते थे, ये शख्स कहाँ है भैया, कब पहुँच रहे भैया, ट्रांसमिशन करनी है भैया, इधर आना है भैया, उधर पहुँचना है भैया, पहुँच जाए ना भैया, देर क्यों कर दी भैया। दिस वॉज द मैन बिहाइंड मेकिंग श्योर एवरीवन कम्स टुगेदर। मैंने एक चीज़ देखी कि अमजद भाई सबको मना करते थे, सुहेल भाई से जो उनका भी प्यार था, बहुत प्यार, वो ये था कि इनके आगे कुछ लफ्ज नहीं कहते थे। मेरे जहन में भी नहीं था शहरू कि मैंने ये करना है, ये उन्होंने मुझे शायद करवाना था कि मेरे उस भाई को तो बुलाओ। अमजद भाई ने बुलाया है इनको। हाँ, मेरे उस भाई को तो बुलाओ जिसकी वजह से हम सब इकट्ठे हो सकते हैं।
तो बस हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं पूरी फैमिली के लिए, आप भी उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। आप सब लोगों के साथ जाएंगे, तमाम हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से तोहफे कबूल फरमाइए। समझिए अमजद भाई आपको अपने हाथों से तोहफे बांट रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।